भारत मंडपम में इंडिया हेल्थ 2025 का हुआ उद्घाटन। हेल्थ केयर क्षेत्र की नई यात्रा को मिली नई रफ्तार। भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आज इंडिया हेल्थ एग्जीबिशन 2025 के दूसरे संस्करण की भव्य शुरुआत हुई। इन फार्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय आयोजन 13 जुलाई तक चलेगा। यह कार्यक्रम देश में हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी मेडटेक सेक्टर की तेजी से बढ़ती जरूरतों और संभावनाओं को दर्शाता है। इसके उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में AMTZ के प्रमुख निदेशक व संस्थापक CEO डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया के महानिदेशक डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, हिंदुस्तान सीरीज एंड मेडिकल डिवाइस लिमिटेड और फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ, सुश्री वीणा कोहली, CEO वैंगार्ड डायग्नोस्टिक्स पूर्व अध्यक्ष ADM, इन फार्मा मार्केट्स इंडिया के MD योगेश मुद्रास सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। विशाखापट्टनम स्थित आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन में दुनिया की पहली मेडिकल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी शुरू होने जा रही है। इसकी घोषणा AMTZ के प्रबंध निदेशक, संस्थापक और CEO डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने की। यह संस्था MTech, MBA और PhD जैसे उच्च स्तरीय डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करेगी, जिसका उद्देश्य मेडिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कौशल विकास को एक नई दिशा देना है। इस ऐतिहासिक पहल को कई प्रमुख उद्योग के दिग्गजों का समर्थन प्राप्त। इन फार्मा मार्केट्स इंडिया के प्रबंध निदेशक योगेश मुद्रास ने कहा, स्वास्थ्य सेवा हमेशा से भारत की प्राथमिकता में रही है और अब यह क्षेत्र निर्णायक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। तेजी से बढ़ती आबादी, सक्रिय सरकारी नीतियों और अपनी देखभाल पर बढ़ते फोकस के चलते यह सेक्टर वर्ष 2030 तक $638 अरब के आकार तक पहुंचने का अनुमान है। भारत का मेडिकल टूरिज्म बाजार भी अब $16.21 अरब तक पहुंचने की राह पर है, जो वैश्विक स्वास्थ्य यात्रियों के लिए भारत को एक प्रमुख राह बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज, दिल्ली। देश की आवाज। Of India Health, which is the show. The legacy is the world's largest show, Arab Health, that we do as our organizers in Dubai, which is the world's largest show. We have tried to launch this show, create that similar momentum in India by launching India Health last year. And we launched in Dwarka last year and have brought it to this heart of Delhi in Pragati Maidan. This year we are having over 300 brands exhibiting, and this is a show where the entire healthcare sector is there. You'll see anything and everything related to the healthcare sector, be it you would say the healthcare infrastructure, the innovations, technologies that are happening over there, any healthcare product that is needed, diagnostics, everything is being showcased over here. Beyond that, we also have 2 parallel tracks of conferences that are happening. One is Global MedTech Connect, which is more on a regulatory conference that is happening. At the same time, we also have the India Health Conference, which is talking about innovations in healthcare, about artificial intelligence in healthcare, and a lot of different topics. We also have, for the first time, launching the India Health Next Awards to accolade the achievers of this industry, be it the innovators, the organizations who have done something, the personas who have done achieved over this last year, something which will, as Informa, definitely feel good. We need to contribute to this industry by recognizing them. So much is going to happen over these 3 days. There's Innovation Pavilion. We have the Italian Pavilion here for the first time coming to India Health. So over these 3 days, and we are expecting over 8,000 healthcare professionals visiting this show in these 3 days. So that's something about the show. I have all experts from the industry here. Let me introduce who have joined me on this for this discussion. We have Dr. Jitendra Sharma, MD, founder, CEO, AMTZ, Andhra Pradesh Medical Technology Zone, who has joined us here. For this media briefing, we have Dr. Girdhar Gyani, who is also Director General of HPI. We have Mr. Rajiv Nath, Managing Director, Hindustan Syringes and Medical Device Limited, and also Forum Coordinator of IMED, which is the All Association of Indian Medical Device Industry. We also have Dr. Sunil Kedarpal, who is Director AHPI, the Association of Healthcare Providers of India, and sitting next to me on my left side is Dr. Raju. Bringing this gathering again in India. We are at a very interesting time. Mr. Rajiv Nath in the morning mentioned that 15 years ago we were 96% import dependent in medical technology. Today we are 65-66% import dependent. जिस रफ्तार से इंपोर्ट कम हो रहा है और उससे भी ज्यादा जिस रफ्तार से एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ रही हैं.
the pace at which our indigenous industry is growing. एक रेलवे स्टेशन पर आप वंदे भारत ट्रेन देखते हैं, उस पे लिखा होता है मेड इन इंडिया, बट किसी हॉस्पिटल पे आप नहीं देखते हैं मेड इन इंडिया, क्योंकि हम लोग ब्रॉडली इंपोर्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है। बट जिस रफ्तार से इंडिजिनाइजेशन बढ़ रहा है, द वे वी आर ग्रोइंग इन सेल्फ प्रोडक्शन, by 2032-33 we will be an import neutral country. Our import will come down to less than 50%, which is the brightest spot in our radar for next 7 to 8 years. So it is a very correct time to bring in pharma markets, India Health in India, in Delhi. The perfect time. So you are actually scripting the history. So my congratulations to this whole team that has brought all of us together. All I can say is, this is the best time to do what you are doing. And in this best time, you have the best people with you. The healthcare provider, the manufacturer, the industry, the government, everybody is rallying with you, behind you, to make this the most successful event and a precursor to many successes in the future. But we are looking at the golden time, and today we are at the golden spot. So thank you. That India's life expectancy at the time of independence was 37 years. आपको यकीन है कि हम लोग 37 years थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आज जो है 73 years हो गई है। ये कैसे हुआ है? ये हुआ है मेडिकल टेक्नोलॉजी के आने से, डायग्नोस्टिक के इम्प्रूवमेंट से, डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन के बढ़ने से, ये सारी तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये मेडिकल टेक्नोलॉजी, जैसे शर्मा जी ने आपको बताया, हम लोग 66% डिपेंडेंट थे, सॉरी 96%, और अभी भी धीरे धीरे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे डिफेंस के ऊपर बहुत जोर डाला है, इंडिजिनाइजेशन के ऊपर, नाउ नेक्स्ट फोकस इज कमिंग ऑन इंडिजिनाइजेशन ऑफ द मेडिकल टेक्नोलॉजी। इसी से ही अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होगी, बिकॉज पीपल कीप सेइंग हेल्थ केयर महंगी है, कॉस्टली है, लेकिन यू आर नॉट रियलाइजिंग इसी मेडिकल टेक्नोलॉजी से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज 73 है। और अगर हम मेडिकल टेक्नोलॉजी को इंडिजिनाइज कर देंगे, दिस कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट विल कम डाउन ड्रास्टिकली, एंड दैट इज वाई दिस इन्फॉर्मा जो इंडिया हेल्थ का जो ये समिट हो रहा है यहाँ पर, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके थ्रू हम लोग एक अवेयरनेस लाते हैं, एक नेटवर्किंग लाते हैं, एंड दैट इज वेयर वी अगेन वांट टू थैंक द इन्फॉर्मा मार्केट फॉर ब्रिंगिंग इंडिया हेल्थ इन आवर कंट्री। Thank you so much, Dr. सर, हेल्थ इंडिया को लेकर आप क्या कहेंगे? सो वेरी हैप्पी कि ये हमारा दूसरा ही प्रयास है, उसमें इतना अच्छा रिस्पांस आया है। ये शो जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मेडिकल फेयर होता है दुबई में, अरब हेल्थ, उसका वही सेम कंपनी से है। सो हमने पहली बार लास्ट ईयर दुबई द्वारका में किया था, और ये अभी प्रगतिनंदन में लेके आए। 300 से ज्यादा ब्रांड्स शोकेस कर रहे हैं पूरे इंडिया से, और इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, इटालियन पवेलियन है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, अवार्ड्स है। तो हमने ऐसा किया, ये एक प्लेटफॉर्म दिया है पूरे हेल्थ केयर इंडस्ट्री को मिलने के लिए और उससे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। सो ये हमारा प्रयास है, एंड हैप्पी जो रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट से, इंडस्ट्री से, एकेडमी से, सबका सपोर्ट हमको बहुत अच्छी तरह मिला है शो के लिए। नटराजन जी, आज हेल्थ एक्सपो में आपने एक स्टॉल लगाया है जी। क्या प्रोडक्ट है और किस काम में आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस करता मेरा कंपनी को। हमें डीकेएस ऑर्थो एंड शर्मा फार्मास्यूटिकल, गुजरात वडोदरा से। वी आर फुल्ली मेक इन इंडिया इन सिंस 1992। लास्ट 33 ईयर्स रे हम ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये है फुल्ली ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब बोन रिलेटेड। जब बोन टूटता है और किसी को हिप कमर में पेन होता है और घुटने में पेन होता है, उसको वो वाला पुराना बोन रिमूव करके हम लोग उसका इम्प्लांट्स बना के लगाते हैं। मतलब तब जाके पीपल मूव कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। उस रिलेटेड सारा प्रोडक्ट हम बनाते हैं। हम स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, COCR, उस तरह का मेडिकल ग्रेड इम्प्लांट यूज करते हैं। उसके लिए अपने पास ड्रग लाइसेंस, FDA, CE, यूरोपियन, ऑल सर्टिफिकेट अपने पास है। हम इंडिया अलावा बाहर भी 90 कंट्रीज को सप्लाई करते हैं। 36 कंट्रीज में हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। नटराज जी, देखा जाए कुछ समय तक पहले तक ये सभी इम्प्लीमेंट बाहर से इंपोर्ट होते थे जी, हॉस्पिटल पहुंचाया जाता। आज मेक इन इंडिया भारत की खुद की अपनी देन है, तो क्या लग रहा है? तो इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट है। इंडियन गवर्नमेंट मतलब मान लीजिए अगर
बाहर का कंपनी यहाँ का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उन कंपनी जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ना वही मशीन हम भी यूज़ करते हैं। पहले से अभी इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट की वजह से अपना मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट का ज़्यादा वैल्यूएबल हो रहा है, धीरे धीरे वो ज़्यादा बढ़ रहा है। इसमें फुल सपोर्ट भारत सरकार का है। अगर देखा जाए रेटों में कितना फर्क आ जाता है और जो गरीब आदमी कमजोर वर्ग है उसे कितना बेनिफिट मिल जाता है इससे? बहुत सारा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी अपना सप्लाई होता है। गवर्नमेंट का जो टेंडर मिलता है उसमें गवर्नमेंट फुल सपोर्ट करते हैं उनके लिए बहुत सारा योजना बना हुआ है, उस रिलेटेड अपना इम्प्लेंट उसमें आ जाता है। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।